Hello, guys. Welcome back to episode. What's the episode I'm doing currently? If you guys know, or let me give you guys a hint. Guess the number of episode this is. So you guys could guess the number of episode this is. I'm not able to recall. Just a hint for you guys. Come on, guess. Great. So, welcome to fourth episode of Get Fit with Utopia, a place where we help you eat smarter and live better. For those of you who still do not, know me, I'm your host for today's evening. So somebody has written 1111. So that's that's 4. So we are already on fourth episode, as I said, and see, I've got something innovative. I've got my bars, and let me see if you guys have got yours too. Alright, so I would like to begin this session with a smile on your face. So I would want everybody, the viewers who are watching this, to smile for a moment. Already, I'm not a joker, but you could anyways smile. So let's begin. Let's take a step forward to this session, Today's session is going to be very much magnificent and knowledgeable. It would be upon the fitness and the nutrition that every individual requires to keep themselves fit. So let's begin with the introduction of the speaker. He happens to be a professional athlete and a personal trainer who has committed himself to help individuals with their fitness goals. Guys, he happens to be a certified trainer from a very renowned institute of India. If I talk about the number of participation in the events that he has done, so he did 1 Indian championship and 7 times he represented India at national level, and 25 plus times he has participated in the states level championship. You could imagine the amount of dedication, hard work, sheer perfection that this speaker of today must be having. So, and the introduction doesn't end here. He also happens to be a CrossFit trainer, So if you are already looking for a trainer, so he's there for you, and he conducts online sessions too. So yes, so I can't really wait now to invite our speaker of the day, who is here to share his wisdom on the field he is in fitness. So guys, let's waste no time in inviting our speaker of the day, who is none other than Anmol Chopra. Hello Anmol sir, how are you doing? Am I audible? Hello, you're audible. How are you? I'm doing good. You came late. I was keeping the viewers busy in the talk. No. Actually, it wasn't connected. I was trying. So let's see. Yeah, here now. Yes. Yeah. देर से आए और दुरुस्त आए, वो एक कहावत है ना. Actually. So, like the very first question that I asked to every speaker, like how did they spend their last 4 months or say 5 months in the lockdown phase? So trust me, if you ask me, I know it was very hard for everyone, like every profession and every individual. But हम fitness industry अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा था. Because you see, theaters हो गए, malls हो गए, these are the gathering places. And gym is the place where actually if this corona ये सब हुआ नहीं होता, still there are so much bacteria and all in the gym because we sweat a lot, we do the thing. So मुझे ऐसा लगता है I work in Mumbai. I operate in Mumbai. All of my work is there. So वहाँ पर तो अभी यहाँ पर मेरे राजस्थान में तो gyms खुल गए हैं, but मुंबई में मुझे ऐसा लगता है कि I am hoping कि जल्दी खुल जाए, वापस जाए, because I am missing my work and plus the Mumbai also. So let's see. Wow. When I will get chance to go back. So guys, let me tell you, he is like a super enthusiastic when it comes to the workout and things like that. His dedication is sheer perfection in his art, and he really adores him, and we adore you for your things that you are doing, sir. Thank you, viewers, thank you.
Thank you for such kind words. Really, I could see the hearts coming out. Yeah, really great. Yeah. So great. So my first question to you would be, when we talk about fitness, the nutrition aspect is very much ignored. So if you could tell us about the relationship between fitness क्या है और nutrition क्या है? So basically, fitness की अगर हम बात करें, तो fitness actually it is a very basic thing, like everybody should be fit. What I feel is not because I'm in this profession, so I am like advertising my profession. But the thing is, right now, if we talk about a country like India, so यहाँ पर इतनी ज्यादा हमारी बीमारियां हैं, then pollution and all those things are already happening, right? So इसमें fit रहना तो बहुत जरूरी है. And fitness का अगर मैं वर्ड को अगर आपको बताऊं तो I think जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत बल्क की बॉडी हो या all time 24 hours और 12 months आपके एब्स रहें, ऐसी जरूरी नहीं है. फिटनेस का मतलब होता है बस आप फिट रहो. I mean the functional fitness, if I talk about, I mean you are able to do all the daily tasks. Like ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके घर में like आपका घर 2 फ्लोर का है and if you want to reach terrace, so you are going on the terrace and you are out of your bed. So that's it is a not fit condition. So वो मे भी हो सकता है वो अभी किसी को समझ नहीं आएगी अगर somebody is in the age group of I may say 15 to 30, 35. I mean उनको समझ नहीं आएगा because अभी हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो हमारी बॉडी बैक्टीरिया से जितने भी जर्म्स होते हैं उससे फाइट करती रहती है. बट आफ्टर 35 इफ यू विल सी द रिसर्चेस एंड ग्राफ्स ऑफ इंडिया कि लोगों को पकड़ने लगे. इनफैक्ट इफ आई मे से सो आई एम मोर कंसर्न अबाउट द फिटनेस थिंग बिकॉज अभी तो बच्चों को मैं देख रहा हूँ काफी सारे मेरे एथलीट्स होते हैं तो उनको मैंने देखा किसी को नी प्रॉब्लम है या किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज थी तो उनको भी है. मतलब दे टॉक अबाउट लाइक व्हेन आई टेल देम टू ईट दिस देन दे से कि नो सर वी कांट ईट शुगर मच एंड दिस इज टेलिंग मी अ 18-year-old guy 18-year-old boy is telling me I cannot eat. So I asked him why can't you eat that? So he told me कि सर मेरे को डायबिटीज का है पेरेंट्स को है तो डॉक्टर ने बोला है. तो तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक्चुअली पीपल थिंक दे आर फिट बट दे शुड चेक इट वंस और दे शुड टेस्ट देमसेल्व्स. एंड बहुत सारे तरीके हैं सर चेक करने के. आई मीन आप जिम ज्वाइन करो या फिर आप कुछ भी फिटनेस एक्टिविटी करो. इफ यू आर डूइंग इट वेल ऑब्वियसली कि एक प्रैक्टिस तो होती है हर चीज बट अगर वो अच्छी धीरे धीरे होती जा रही है तो यू आर इम्प्रूविंग. if something is stopping your improvement then there is a thing which you have to worry about. Because in the young age you grow. You work out, you take right nutrition, your body will grow. But if something is hampering, you have to know that क्या hamper कर रहा है. So all those things ये होता है. आज गर्ल्स की अगर बात करें तो PCOD, PCOS इनको बहुत हो रहा है. मतलब हर 4 में से लड़की को एक होता है जिससे बहुत वेट गेन होता है और वेट गेन होने के बाद बहुत कम स्पीड से वेट लॉस होता है. लाइक एक नॉर्मल अगर किसी लड़की को विच मतलब जिसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, शी इज फार अवे फ्रॉम द एनी मेडिकल इश्यूज, उसको शायद हो सकता है कि उसको 4 महीने में 10 किलो कम हो जाए. बट अ PCOS और PCOD गर्ल she will gonna take approximately 8 months. So you see, that's the difference. And people should not be like worrying about it. डरना नहीं चाहिए. But I would say एक functional fitness रखो ताकि आप डे टू डे लाइफ, जरूरी नहीं है कि आपको जिम में जाके 100 किलो उठाना तो ही आप फिट हो. आप घर पे रह के भी फिट हो सकते हो. You should be able to do the daily task. Daily so just task. That. Daily task. And in this, nutrition plays a role where if you have a goal, if you have a certain goal, then nutrition also comes into role. वैसे भी ध्यान रखना चाहिए खाने का थोड़ा बहुत. कभी कभी जंक खा लिया या कभी कभी कर लिया. मैं बताता हूँ आपको, अगर हम फिटनेस वाले जो हैं, ऐसा नहीं है कि हम यार बॉइल्ड खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल टेस्टलेस खाना खाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है. बट इट्स अबाउट द राइट नॉलेज यू आर गेटिंग, यू नो द राइट कैलोरी यू शुड बी टेकिंग. सो ऑल दीज थिंग्स. सो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इफ वी टॉक अबाउट, सो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. कि दोनों साथ में चलेगा तो बहुत अच्छा है. यू विल फील गुड फ्रॉम इनसाइड आउट. दोनों जगह से आप फील करोगे. ओके, परफेक्ट. सो जस्ट दैट. वो बोला जाता है ना, यू आर व्हाट यू ईट. जो आपके अंदर है. एक्चुअली पता है लोगों क्या करते हैं, लोग थोड़े से कोट्स पढ़ के ना, दे जस्ट फील इट, देन आफ्टर 15 मिनट बाद यार भूख लग रही है, चलो बिस्किट तो खा ही लेते हैं, रात हो गई है क्या बनाएंगे.
आप दिन भर में थोड़ा सा आप मेंटेन करके रखते हो, एंड इट्स जस्ट सिंपल टास्क. अगर यहाँ पर व्यूअर्स जो देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा अगर दे वांट दैट थिंग, सो जस्ट ट्राई टू ईट हाउ द क्वांटिटी व्हाट योर बॉडी नीड्स. हमारे इंडियन डाइट में क्या होता है, वी ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड स्नैक्स में चाय बिस्किट चलते हैं, ठीक है, या फिर हमारा कुछ भी चल जाएगा बाहर का. एंड द थिंग इज कि लोग क्या करते हैं सुबह, ठीक है, वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो सुबह सुबह वहां से निकलते हैं, तो उनको ये लगता है कि यार अभी हम ब्रेकफास्ट खा के निकले, हमको 8 बजे निकलना है, देन तो वो इतना एक्सेस में खा लेते हैं कि उनको भूख ही ना लगे 2 बजे तक, 3 बजे तक, लंच के टाइम तक. अच्छा, तो दैट इज बैड. यू शुड बी टेकिंग एक बार में दैट मच क्वांटिटी. या कि वो पेट भरने के लिए खाते, वो बॉडी को लगाने के लिए नहीं खा रहे. तो बॉडी, अब आपका एक प्रक्रिया है अंदर की बॉडी, तो वो जितना डाइजेस्ट करेगी उतना वो आपकी बॉडी में लग जाएगा, ठीक है. बट एक्सेस will be converted into fats, and regular doing this thing, you will have your percentage of fat will rise, so all those things happen. Your weight will, you will like gain weight, so that's the thing. बस कुछ नहीं, ऐसा कोशिश करें लोग कि अगर 4 मील्स दिन की डिवाइड कर दो, and that too छोटी छोटी मील्स. अगर वो प्रोटीन, मतलब एक तरह से अगर मैं परसेंटेज में डिफाइन करूं तो it should be like 30% of protein should be there, 30% of fat, and 40% of carbs. This should be your plan, whatever you are eating. Got it. So got it. 30% protein, Yeah. 30% carbs, 30% and fats, 30% fats, and 40% you can say carbs, because in India we can't. I think people like majority of people can't eat without roti, chawal, or bread. Very true, sir. I think in the world we only have introduced the bread or lachha parathas and all those things. So that's the thing. और सर घर में ये आप बोलो ना कि मैं रोज दिन ब्रेड ही खाऊंगा, तो घर वाले भी बोलते हैं ये रोटी वोटी खाओ, उससे बॉडी बनेगी. एक आपको सर छोटी सी एक चीज बताता हूँ. इसमें लोग क्या करते हैं, आपने हमेशा सुना होगा ऐसा, बचपन में भी ऐसा होता था. इवन आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो मेरे घर में भी होता था कि पापा लोग ऐसा बोलते थे कि ये बटर, मतलब आलू के पराठे पे जो बटर होता है ना, तो मैं मम्मा यूज्ड टू से ये बटर कम खा, बटर कम खा, लाइक फैट है वो गलत चीज है. एक्चुअली आपको वो फैट है, दैट इज फैट. एंड हमने हमेशा बचपन से क्या पढ़ा है, फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट इज नॉट द थिंग विच इज डेवलपिंग, गिविंग यू वेट गेन्स एंड ऑल. दैट इज नॉट द थिंग. सो वो मक्खन खा लो, पराठे कम खाओ भाई. So, वो थोड़ी सी चीजें हैं, तो ठीक है, लोगों को आ रही है धीरे धीरे समझ, बिकॉज ऑफ द like awareness, like we people are, like you are, seriously thanks to you कि आप ऐसे अवेयरनेस फैला रहे हो. आपके थ्रू मैं काफी लोगों से बात कर पा रहा हूँ और आई कैन शेयर माय नॉलेज. सो जस्ट दैट द थिंग, थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है लाइफ. गॉट इट सर, गॉट इट. सर जैसे कि आपने बोला कि नॉर्मल फिटनेस जरूरी है, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज कर सके, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग कैसे अपना एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, होल बॉडी का बैलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब अगर आप व्यूअर्स को बता दें उनके बारे में. सर बेसिकली ये जो टर्म्स है ना, ये स्पेसिफिकली आ जाते हैं अगर आप कोई गोल फेस कर रहे हो. अगर आपने जैसे ये 4 टर्म्स आपने जो बोले, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड आई गेस स्ट्रेंथ आपने बोला, एंड वन मोर आई फॉरगॉट, बैलेंस, endurance. So these things you cannot just have them in one day, right? आपको रिपीटेडली इनकी प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है. सो वो चीज होती है. जैसे इंड्योरेंस की हम बात करें तो इंड्योरेंस और स्टेमिना में फर्क. स्टेमिना है कि कोई बंदा 10 किलोमीटर भाग रहा है, ओके, तो दैट इज स्टेमिना, कि 10 भाग सकता है. बट कोई बंदा है वो 35 मिनट्स में 10 किलोमीटर भाग रहा है, दैट इज इंड्योरेंस. So at a speed he is going, he's like going, he's not reducing his speed, his or her speed. So that's the thing. तो ये जो differences है ना, ये आप जो भी यहाँ पर देख रहा है, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं. And I would literally say, guys, don't rush into fitness. I mean, we see a lot of videos, we see tiger shop jumping here and there. Actually, आप उसके बारे में रिसर्च करोगे ना, तो वो शायद 15 साल से जंप कर रहा है, तब जाके वो परफेक्शन आया है आज. So you Very see, true, you need time. You need time. So give that time, because आपको दिन में अगर आप
आई से कि दिन में अगर आप आधा घंटा भी फिटनेस को निकाल रहे हो ना, इनफ, दैट इज इनफ, दैट्स इट। बट समथिंग शुड बी देयर। ग्रेट ग्रेट सर, आप रनिंग या वॉकिंग उसको कितना इंपॉर्टेंस देंगे व्हेन इट कम्स टू फिटनेस? बहुत ज्यादा, पीपल थिंक बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो जब फिटनेस की बात आती है ना, तो लोग के मन में बस जिम ही होता है कि मेरे पापा जिम नहीं जाने दे रहे, मम्मी जिम नहीं जाने दे रही है, तो वी कुड घर पे 4 बार कपाल भाती कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं सर, मैं आई एम टेलिंग यू, एनीथिंग and everything is, both are better. If you're doing everything then तो well and good, but you should do anything. अब मैं ये नहीं कहता कि आप जिम में आप जाओ and आप जिम से जाओ, ठीक है, या फिर आप अगर बोलो कि आप कोई पर्टिकुलर प्लान फॉलो करो, आप स्किपिंग करो, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो, you don't need to join classes. आपका अगर एक फ्रेंड ग्रुप है, अच्छा है, तो आप ये कर सकते हो। शाम को आप कोई भी जो स्पोर्ट आपको पसंद है ना, go and play. Your body just need the activity, the movement. Oh wow. Your body just need the movement. ठीक है, जैसे जैसे मूवमेंट आएगा तो वैसी बात आपने बोला, जैसे बैलेंस आता जाएगा, बॉडी बैलेंसिंग अच्छी होती जाएगी। ठीक है, हम भागते हैं, आज एक बच्चा होता है ना, छोटे पाँव होते हैं उसके, बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके चलते नहीं है, थोड़ा सा वो गिरता विरता है, बट रिपीटेडली उसको चलाते हैं हाथ पकड़ पकड़ के, तो वो उसके पैरों में स्ट्रेंथ आती जाती है। ठीक है, और थोड़ा जब बच्चे में थोड़ा दिमाग भी डेवलप होता है, जब वो थोड़ा चीजों को पहचानना चालू करता है, तब करता है, तो वो समझना चालू करता है चीज। तो यू सी एक्टिविटी, द बेसिक मूवमेंट इज नेसेसरी। Got it. So consistency plays a very important role, very important. I mean, you see ना कि अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी होता है, हमारे बॉडी रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बॉक्सिंग, ठीक है, तो बॉक्सिंग में क्या होता है, इफ समबडी पंचेस यू, so we are not the boxers, we haven't trained like boxers any time, right? So what we'll do, we'll just keep our hand like this, we'll keep our face there, but this is the reflexes, automatically it comes up, right? But अगर मैं इसी की practice कर लूंगा तो this becomes more balanced, because if I'm a boxer, so you will see boxers to wait, okay, done, I vlog and then I will jab. Right. They have practiced it. So फिटनेस का यही होता है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करो, बिकॉज योर बॉडी नीड्स इट। अगर आप बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली यू विल लूज बैलेंस। अगर वेट इंक्रीज होगा तो यू विल लूज बैलेंस। सो ट्रू, दिस थिंग्स, so some activity is needed, be it anything. All right sir. So activities बहुत important है. Any movement that you do, that is very important. Any movement is, yes, will work. ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि यू नो अभी यूथ स्पेशली हम लोग इंस्टाग्राम मान लो ऑन किए और फिर लगे रह जाते हैं, मतलब सोने का टाइम 11 बजे है और जैसे ही पता चल रहा तो 3 बज चुके हैं ऑलरेडी। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप व्हेन इट कम्स टू फिटनेस और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी? सर स्लीप बहुत जरूरी है। आई मीन अगर हम बोले कि अगर हम बात करें कोई मशीन, तो भी मशीन भी होती है जिसको अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, उसको प्रिपेयर किया गया है, कभी कभी वो भी गर्म हो जाती है, राइट? तो बोलते हैं ना हमारे घर में कभी होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। इवन फोन्स की आपने बात करी, इंस्टाग्राम, फोन भी गर्म हो जाते हैं यार, कभी कभी बेचारा फोन भी बोलता है कि अरे बस करो, जो मेरे में इतना देखते रहते हो ना वो कर भी लो। वेरी ट्रू। इट्स लाइक दिस थिंग कि आप यूज करो। I will not say कि Instagram या कोई भी सोशल साइट बेकार है या you shouldn't use it much. I think there should be a balance in life of everything. So sleep, if sleep comes here, so sleep plays a vital role. If the viewers don't know, so if a person who is active, if an athlete like who goes regular, for and he's an intermediate intensity से वो workout करता है, medium, he's not a beginner, he's not an advanced level, he's a बीच वाला person, intermediate like that. So, अगर वो अच्छी तरह ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी के टिश्यूज उसमें जाकर जिम में बोलते हैं ट्रेन करते हैं, ठीक है? तो मैं ट्रेन वर्ड यूज नहीं करता, यू ट्रेन दैट, बट समझाने के बेस पे मैं बोलता हूँ, आप जब जिम में जाते हो ना तो यू आर टीयरिंग दैट। प्लीज गाइस ये मत सोचना कि आपको भी इंजरी हो रही है, उसका मतलब ट्रेनिंग है, बट द थिंग इज यू आर टीयरिंग दोज टिश्यूज, यू हैव ट्रेन दोज टिश्यूज। नाउ उनको जोड़ने के लिए यू हैव टू स्लीप, यू हैव टू
eat good, nutrition, nutrition. eat good. So that's in अगर single word I will call it, so it is called recovery. Oh, अगर आप अच्छी तरह जिम करके नेक्स्ट डे हम जिम पहुंचे तो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू आर फीलिंग लेजी और यू आर फीलिंग टाइट बॉडी आपके अभी स्टिफ है, कहीं सोरनेस है आपको, लिटिल सोरनेस इज गुड. लेकिन अगर ज्यादा सोरनेस है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि देयर इज सम लैक ऑफ थिंग, लाइक आई मीन इट माइट हैपन दैट आपने ओवर ट्रेनिंग कर ली, इट माइट हैपन कि आपने न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लिया, 4 दिन से आप न्यूट्रिशन ले रहे थे. एंड द बेस्ट एडवाइस टू देम इज कि सबसे अच्छी ये चीज है कि आप अपनी कैलोरीज काउंट करो. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप जितना आपको बॉडी को नीडेड है आप उतना काउंट करो. एंड आई वुड टेल एवरी व्यूअर हियर एंड एवरी फिटनेस प्रोफेशनल इफ दे वांट टू नो दिस थिंग कि आप लोग अपनी इतना ही बॉडी में डालो न्यूट्रिशन जितना जरूरत है. एंड अगर आप किसी प्लान के उससे जा रहे हो तो एटलीस्ट कोई भी आपका ट्रेनर है आपको अगर प्लान देता है ना तो आपको 10 डेज ना जो वो बोलता है उसको फॉलो करो. अच्छा 10 डेज में क्या हो जाएगा, आपको एक होगा कि मैंने इतना मैं रोज खा रहा हूँ, इतना मैं रोज खा रही हूँ या फिर इतना मैं ट्रेन कर रही हूँ. अब मैं बोलता हूँ अगर आपको चाहिए पता करना है आपको यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आप 3 दिन घर पे रहो, डोंट ईट वेल, डोंट ट्रेन. 14th डे यू विल फील लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, you will feel कि you are less energetic. Even in 3 days, you will feel कि यार बहुत ज्यादा lazy feel हो रहा है या कुछ हो रहा है. तो you see this difference, your mind will tell you कि लाइफ में थोड़ा सा भी कैलोरी में ऊपर नीचे हम चीजें करते हैं, like in terms of eating और in terms of like अभी जैसे आपने ये कोविड का जो भी टाइम चल रहा है, everybody is sitting at home. I am तो getting like my DM is flooded with the things कि जितने भी मेरे clients हैं मतलब members हैं या जो भी मेरे followers हैं, मतलब इतने नहीं आए नो बट स्टिल जितने भी हैं आई एम ब्लेस्ड कि वो हैं और मेरे को आता है क्वेश्चन तो मेरे को अच्छा लगता है आंसर करना कि सबकी एक ही क्वेरी आती है यार कुछ फिटनेस का बता दो क्योंकि घर पे बैठे बैठे वेट बढ़ रहा है या चीजें हो रही है. तो दे जस्ट नीड टू नो दिस थिंग कि आपको अगर ये आपका चीजें बढ़ रही है तो आपको अच्छी तरह करना है, अच्छी तरह खाना वाना थोड़ा सा मेंटेन करो और सोना अपना अच्छा रखो. एटलीस्ट इनफैक्ट दिस इज रिसर्च कि अगर कोई एक एथलीट है जो अच्छी तरह न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, अच्छी तरह ट्रेनिंग कर रहा है, अगर वो 8 घंटा सोता है, अच्छा, एंड कोई सेम एथलीट है जो सब कुछ सेम कर रहा है बट 5 घंटा सोता है, मे बी बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल और व्हाटएवर कैन बी सर्कमस्टांसेस, देयर इज अ लैक ऑफ 60% ऑफ स्ट्रेंथ. जो 8 आवर्स सो रहा है ना वो 60% उसका मसल ग्रोथ में हुआ है, मतलब मसल ग्रोथ उसका 60% ज्यादा से ग्रो होता है, इसका 60% से कम होगा. So you see, you need rest. सबसे ज्यादा आपको रिकवरी ही सोने के टाइम पे होती है, बिकॉज सोने के टाइम पे योर बॉडी इज नॉट मूविंग, ओनली योर लाइक इंटरनल ऑर्गन्स आर वर्किंग. यू सी, सो योर बॉडी इज रेस्ट, योर ब्लड फ्लोज वेल एंड लाइक वो ट्रबल नहीं होता. जैसे अगर मैं अभी बैठा हूँ तो अभी मेरा ब्लड फ्लो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से फ्लो हो रहा होगा, राइट. अब मैं उठ के चलने लग जाऊंगा तो वो थोड़ा सा तेज हो जाएगा, बट रात को वो एक ही प्रक्रिया में 7-8 घंटे तक फ्लो करता है. So you need that flow, that if I call that stillness, वो चाहिए थोड़ा सा. So sleep is very important and anything 7 hours is best. 7 hours भी नहीं सोना चाहिए भाई. तो ये मत सोचना कि मैं 12 घंटे सोता हूँ तो मेरा 80% ग्रोथ होगा. Very nice, very nice. So a very brilliant answer that you gave about sleep, that we need to take care of our sleeping patterns and especially the long run. Better, yeah. Okay. Yeah. So जैसे कि आपने बोला sleep के बारे में बहुत जरूरी है, 7 to 8 hours sleep, मतलब a rough amount of sleep. So my next question इसी पे है कि you know जो viewers अभी देख रहे हैं वो nutrition के बारे में मान लो उनको knowledge नहीं है. So how could a beginner start calculating the calories and the nutrition? I would say कि आज like social media जो platform है वहाँ पर सब कुछ है. मेरे को तो I mean as far as I know जो मुझे चाहिए लाइफ में, अगर मुझे कुछ सीखना है ना तो मुझे तो उससे 100% ज्यादा ही दिखने को मिलता है. मतलब I am so much amazed things कि fitness इतना grow कर रही है. Actually all the things, not only fitness but सारी चीजें social media platform से grow कर रही है. And everybody is using that. So I think out of if somebody is using 4 hours of social media, तो at least 1 hour productive चीज को भी हम दे सकते हैं. 1 hour आप थोड़ा सा knowledgeable videos देखो, कोई अच्छे जो trainers होंगे, मैं बोलता हूँ जो
फॉलोअर्स वाले ट्रेनर्स हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स, आप उनको फॉलो करो, वो डेली के टिप्स डालते हैं, आप उनको डीएम करो, अगर वो रिप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि योर प्लेटर शुड बी हाउ योर प्लेटर शुड लुक एंड टेक दोज मील्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर न्यूट्रिशन बेस पे अगर मैं बताऊं कि लोग जो न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे रखते हैं, तो एक चीज सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने ब्रेकफास्ट किया है 9 बजे, सो हमारा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि, और मैंने देखा भी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ना, यहाँ पर लोग भूख लगने पे नहीं खाते, ठीक है, दे ईट कि मन हो रहा है खाने का, राइट। सो अगर किसी ने 9 बजे खाना खाया है ना, 9 बजे खाना खाया किसी ने, तो आप, मैंने ये नहीं बोलता स्टार्व, जब पेट एकदम पकड़ने लग जाए देन ओनली यू ईट, बट यू ईट अराउंड, अगर आप यू फील हंग्री एट 1 o'clock, you eat then, but don't eat it surplus. As far as I know, 1 मील के बाद 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे बाद ही आपको भूख लगनी चाहिए। अगर आपको 6-7 घंटे बाद भूख लग रही है तो यू आर डूइंग ओवर ईटिंग। अच्छा। एंड अगर आपको 3 घंटे के उसमें आपको लग रहा है तो यू आर फाइन, गोइंग फाइन, कैलोरीज वाइज यू आर गोइंग फाइन, यू आर ईटिंग राइट, एंड एवरी टाइम आई टोल्ड यू द प्लेटर शुड बी द सेम। एंड सैलेड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। सैलेड्स जो होते हैं वो आपकी अच्छी एपेटाइट करेंगे, ठीक है, दे विल हेल्प यू डाइजेस्ट मोर। When should one consume salads? Salad, you should keep it in every meal. No, every meal. You should keep some portion of salad. So, I'm sorry, I did mention it like before, कि वो जो platter होता है ना आपका, उसमें आपको ये सब रखना है and you have to keep salad. So basically, अगर मैं लोगों को बोलूं, तो people should do it like that कि आप लोगों को जो आपका प्लेटर है, जैसे मैंने बोला कि आपका प्रोटीन है, सपोजली अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसका पनीर है प्रोटीन, ठीक है, कार्ब्स हो गया अगर वो 2 रोटी खा रहा है, एंड फैट्स हो गया, फैट्स में अगर वो अगर वो कुछ भी खा रहा है, लाइक इवन पनीर में बहुत ज्यादा फैट होता है, लेकिन अगर स्टिल वो चीज वीज कुछ खा रहा है, अगर वो चीज वीज कुछ खा रहा है तो दैट्स द फैट कंटेंट। यू सी दीज 3 थिंग्स, द पर्सन शुड स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम सैलेड। तो सैलेड पहले खत्म करो, ठीक है, 1 रोटी खा लो, सैलेड खत्म हो जाना चाहिए, फैट खत्म हो जाना चाहिए, पनीर थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर अब यू फील हंग्री तो ईट द सेकंड रोटी, द कार्ब्स। जितना आप कार्ब्स कम रखोगे, योर बॉडी विल ग्रो मोर फास्टर और यू विल नॉट कैच फैट। सो यू सी, तो फैट से नहीं डरना चाहिए। घी होता है, लोग घी नहीं डालते हैं, तो ये सब चीजें होती है कि घी डालना चाहिए। रोटी पे घी नहीं लगाते, कई लोग मैंने देखा है कि फैट नहीं, घी नहीं, मोटे हो जाएंगे। अरे वो घी खाना है, वो एसेंशियल फैट है, एसेंशियल, so राइट, that's the thing, yeah. वाह, ग्रेट। घी मैं भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ, लिसनिंग वन ऑफ आवर फिटनेस एथलीट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर, जैसे कि आपने बोला कि 6-7 घंटे जब भूख लगे तब खाना चाहिए, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग और कैसे करना चाहिए? सर, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है सर, बेसिकली उसका वही होता है, वो सर एक गोल प्लानिंग होती है कि अगर किसी को, देयर आर वेरी, मतलब बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं आजकल, बहुत सारे, बट द बेसिक थिंग इफ समबडी शुड नो, तो उनको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी चाहिए। टू लूज फैट you should be in calorie deficit, and to grow you should be in calorie surplus. Intermittent fasting में क्या होता है? It is a fasting of that you will eat for 8 hours and fast for 16 hours, right? So what I think is कि that is basically good for, actually that is good for everyone who can do it. So but उसके लिए क्या होता है कि आपको भी वो 8 घंटे में, क्या होता है, आपको भी 8 घंटे में नीडेड कैलोरीज ही खानी। एक बॉडी की हमारी जो हाइट होती है और हमारी वेट होता है और एज के हिसाब से हमारा एक रेशियो निकलता है कि दिन में इतनी कैलोरीज हमको खानी। तो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट एंड देन यू हैव टू ईट दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड व्हिच इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। सो आई वुड सजेस्ट कि नोबडी शुड थिंक सो मच। आई मीन दे शुड डू द बेसिक 4 meals a day and they should only be concerned about कि उनको एक प्रोटीन रहे, फैट रहे और कार्ब्स थोड़ा सा रहे। 40% जो मैंने बोला है कि वो भी मैंने एक्चुअली बोल दिया है कि दैट इज, if somebody can keep it like that कि 40 and 20% carbs, तो that is very good, best. So, okay, yeah, okay, like that. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर किसी को करनी है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज उसमें 16 hour फास्ट करना रहता है। तो आप समझ रहे हो कि सपोज वी से यू कैन ईट फ्रॉम 2 o'clock to 10 o'clock in the day, and then from 10 to अगले दिन 2 बजे तक आपको करना।
फास्ट। एंड रूटीन, अगर आप सुबह वर्कआउट करने जा रहे हो, अगर आप बिजी शेड्यूल ना तो ठीक है, टाइम निकल जाता है, थोड़ा आदमी कहीं और बिजी रहता है तो कर लेता है वो कोप अप, बट in that sort of matter, in that I think I have seen in my clients and as I have seen what my experience is, कि मैं फिर अपने क्लाइंट को ना ज्यादा अच्छे से वर्कआउट नहीं करा सकता। अच्छा। बिकॉज अगर वो सुबह मेरे पास आ रहा है तो पहले ही वो 10 बजे रात से भूखा है, 8 बजे अगर वो सुबह मेरे पास आ रहा है तो ऑल द वे इट इज अ 10 hours गैप। सुबह उठ के हम भूख लगती है हम राइट थोड़ी बहुत, देन मैं उसको जिम में ला रहा हूँ और मैं उसको इंटेंसिव वर्कआउट करवा रहा हूँ, सो दैट डजंट नहीं हो पाएगा। हाँ, और जिम से निकलने के बाद when he needs something to eat for the recovery, then too he has to eat only on 2 o'clock or like at 2 only. So what I feel is कि उससे बढ़िया अगर नॉर्मली भी हम जा सकते हैं तो क्यों खुद को टॉर्चर करें? Go with the simple plans. खुद को क्यों टॉर्चर करना? एग्जैक्टली, फिटनेस कोई टॉर्चर नहीं है। I mean, yeah, actually, मतलब लोग क्या होते हैं, बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, oh my god, सब कीटो डाइट एंड ऑल डाइट्स ऑफ दोस थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है यार, दो चीजें होती हैं दोस्तों, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस। जितना आप कैलोरी बर्न कर रहे हो उतना आपको, उससे कम आपको खाना है, या उसके बराबर भी आप खाओगे तो भी अच्छा है, क्योंकि यू आर ईटिंग फैट्स एंड प्रोटीन्स, जो आपका फैट नहीं बढ़ाएगा, वो मसल बिल्डिंग करेगा आपका, राइट? सो वो आपको खाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। So, all right, sir. We are about to conclude our session. So, if any viewers have any questions, so you could just comment down below. I'll read it for sir. Until then, आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा एक बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप दे सकते हैं अपने साइड से टू द यूथ्स अबाउट न्यूट्रिशन और फिटनेस ओवरऑल। सर, मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि अभी लाइक in this era where I'm telling you about कि बहुत सारी बीमारियां भी आ रही हैं, अगर हम ग्राफ निकालें ना तो एक्चुअली डायबिटीज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो अलग बात है, लोग इसको तब तक सीरियसली लेते हैं बिकॉज जब तक ये टाइप 2 में नहीं होता। टाइप 2 एज इन, अगर एवरीबडी इज लिसनिंग, टाइप 2 इज कि आप जब इंसुलिन, यू हैव टू इंजेक्ट द इंसुलिन, लाइक वो होता है, तो आपको जब तो मैं बोलूंगा वहां तक नहीं आना चाहिए। एंड फिटनेस, these guys, I would literally tell you, you can Google it also, कि फिटनेस ने ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं कि रेगुलर फिटनेस एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग व्हेन समबडी इज लाइक गोइंग थ्रू सम डायबिटीज, लाइक टाइप 1 डायबिटीज समबडी इज गोइंग थ्रू, वो रिवर्स भी हो गई। दे हैव बीन डायबिटीज फ्री। एंड द मोस्ट एक्सीलेंट एग्जांपल, आई मीन आई नो, इज इन माय होम टाउन ओनली। एक हमारे यहाँ पर पक्षी स्कूल है। इनफैक्ट आई वुड बी ग्लैड अगर कोटा के व्यूअर्स ज्यादा देख रहे हैं, they should get motivated because they can relate, they know the person, right? So वो उन मैम को कैंसर था, she is the principal of the school, उन मैम को कैंसर था एंड इन 2 years उन्होंने 3 घंटा, वो सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा फिटनेस करती थी और सब कुछ करा था। I don't know the details of it, but I have read those things कि उनके पास आर्टिकल आया था एक पेपर में कि रेगुलर फिटनेस एंड एक्सरसाइजिंग, she has reversed her cancer. अच्छा, she is good now. So reading that news and practicing things on like in my day-to-day life, like if I call like if I talk about myself, hopefully that's what, बहुत टाइम हो गया है कि मुझे बुखार नहीं हुआ है। मैंने लोगों को देखा है मुंबई में थोड़ा, हाँ या एब्सोल्युटली, अभी लगना भी नहीं चाहिए। हाँ अभी तो लगना भी नहीं चाहिए, लिटरली अभी तो लगना भी नहीं चाहिए। सो द थिंग इज कि हमारी बॉडी इम्यून है क्योंकि हम रेगुलर फिटनेस कर रहे हैं और रेगुलर चीजें कर रहे हैं, ठीक है? तो वो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग जो कर रही है, बिकॉज आई सी माई फ्रेंड्स और लोग भी मैंने देखा है कि वेदर चेंज में लोगों को थोड़ा सा गला खराब हो जाता है या कुछ भी होता है। आई एम नॉट सेइंग दे आर वीक और दे आर लाइक सम, उनके साथ प्रॉब्लम है, बट इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस कि मैंने ये देखा है कि फिटनेस एंड लिटरली लाइक अभी मैं आपको बताऊं, कोरोना ये जब हुआ था, जब कि मुझे एक्चुअली मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं बिल्कुल फिट, मैं अपने होम वर्कआउट्स तो कर ही रहा था, ठीक है, लेकिन आई स्टार्टेड आल्सो फीलिंग लो एंड लेजी। आई वुड शेयर दिस कि मैं खुद, मेरा रूटीन इतना बिगड़ गया था ना कि मैं 6 बजे सोता था सुबह, राइट? बिकॉज आई वॉज हैविंग द होल डे एट होम। आई मीन 6 बजे उठ के जाना गया है, बाहर तो जा ही नहीं सकते, लॉकडाउन है टोटल, ठीक है? तो जो दिन मतलब दिन काटने पड़ रहे थे घर में रह के, तो देयर वाज नो वर्क टू डू इन द मॉर्निंग और टू फॉलो एनीथिंग, बट एज सून एज, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट विल गो फॉर सो लॉन्ग,
Correct. I thought it will be Nobody around 8 expected. to 10 days. Yeah. Even trust me, मैं मुंबई से आया था. I was expecting कि मैं ठीक है 1st April को वापस चला जाऊंगा. And from till then, like since then I'm here. I'm stuck here. My God, So my God. that's the thing कि 15 दिन 10 दिन मुझे लगा कि जिम नहीं है, ठीक है वापस जाके कर लेंगे ऐसा वैसा. बट जब ये लंबा खिसका गया, then I started working out. And जैसे ही मैंने वर्कआउट अपना चालू किया ना, I literally felt like I already know the difference about this, but I am telling this to all the viewers ताकि आप एक बार ट्राई करके देखो. Right. कि आप ट्राई करोगे, you will see changes in yourself also. कि आप देखोगे कि अपने आप अगर यार आप सुबह सुबह 6 बजे उठ गए हो, आपने मेहनत करी है, then you are doing all the day-to-day tasks of at your home. If you're cooking, if you're studying, right? If you are cleaning your house, you're doing anything, your body is moving. You're burning calories, you are working. Your body is Correct. working. Correct. तो आपकी बॉडी थकेगी, आपको नींद आएगी, आपका रूटीन अच्छा हो जाएगा. लाइक टुडे इफ आई कॉल, द थिंग इज कि अभी मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना काम की वजह से थोड़ा मेरा लेट हो जाता है. लाइक मैं 1 बजे तक सो जाता हूँ अपना, एंड देन आई वेक अप एट 8 o'clock in the morning when I have my clients. Okay. So that's the wow. thing. I maintain my sleep, and I am seeing the changes in my body. कि पहले जितना मैं लेजी था, अभी मैं जग रहा हूँ. 8 hours के बाद मैं ठीक है थोड़े बहुत घर के इधर उधर सबके रहते हैं काम वाम. I don't feel lazy. I'm more active. So these Wow. changes are there. So I would suggest everyone to, if fitness comes into like question, so you should just do some activity. And nutrition base पे मैंने जो आपको बातें बताई, आपको ध्यान में रखें कि आप थोड़ा बहुत मेंटेन रखें. ठीक है, चीट मील्स कभी कभी चलेगा. कभी क्या आई वुड से कि अगर आप यू आर गोइंग 5 days on a good note, you're going good nicely, so you can eat something. I mean, Wow. what's the difference? I am giving you no, seriously, I told you your platter should look like roti, carbs, like that. So you can do that ना. पास्ता आप खाओ, लेकिन पास्ता आप इतना सारा मत खाओ. पास्ता आप इतना सारा रखो, उसमें आप चिकन श्रेड कर दो, वेजीज डाल दो, तो that will be a big Wow. right. And you are eating your pasta favorite, your mind which is asking, and you are giving your body which the body needs. Correct. Both the things you are maintaining here. So it's just about maintaining, and उसके लिए आप YouTube कर सकते हो. You have various platforms to like explore. Yeah. And Anmol sir is always there. Yeah, I am Right. always there. Perfect. Perfect. That's the thing. Yeah. Thank you so Yeah. much sir Yeah. for sharing your practical experiences. I think मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और viewers अभी तक Thank you, there are sir. so many viewers watching in, और बाद में ये वीडियो बहुत जगह जाने वाला है. So I hope Please. it adds value to somebody's life. So Thank you. grateful Thank to you you, so sir. much. Thank you so much, sir. Thank you for giving me this opportunity. Yeah. You deserve it. Yeah. You deserve it. Thank you so much. Thank you. All right, guys, what a lovely session. What a gem person is Anmol sir. सच में मजा आ गया उनसे बात करके. And to end this live session, I have a beautiful quote which I wanted to share, and which I practically I practice. You know, ये होता है, all progress takes place when we step out of the comfort zone. It's very important to step out of our comfort zone, and yeah, you could see wonders happening after that. I would like to thank my dearest audience for staying with us and supporting us. And if you haven't checked our page, so do check our page. We have like amazing bars for you, and we are launching recently the Utopia, which has 20 grams of protein in it. So you could always try, and you know, it's healthy. Sir ne bataya, healthy, eat healthy, and live smarter. That's our whole motto of doing this live session. Thank you, guys. Please take care of yourself, do well, and keep eating healthy, work out. Thank you so much.